in overall, if I say, if I compare your breath along with the God, no. आज से हम कुछ सेशन हमारे ब्रीदिंग वर्कशॉप के लेंगे एंड इसमें हम बताएंगे हाउ ए ब्रेथ प्ले वाइटल रोल टू फाइट विथ योर ओन बॉदरेशन एंड वरीज। आपकी श्वास कितना अहम रोल प्ले कर सकती है आपको प्रसन्न मुद्रा में लाने के लिए। अब आप कहेंगे गुरुजी श्वास तो वो नाक से लेना छोड़ना, मुख से भी लो उससे छोड़ो। बात तो है कि करना क्या है। जिस प्रकार आप कोई अपना प्लाट खरीदते हैं, है ना, तो उस पे आप अधिक से अधिक कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते? यस नो, है ना। इस पर नगर निगम के क्यों परमिशन है, उसके अलावा यू ट्राई टू मैक्सिमम इट्स कंस्ट्रक्शन। तो व्हाट इन आवर ब्रीदिंग वर्कशॉप we try to use our lungs capacity as maximum we can. Lungs capacity is depend on your age. You must be know we are all mammals. We have the lungs. How frog can take a breath? Anybody can help me? How frog take breath? एक वो किसको बोलते हैं, फ्रॉग, मेंढक कैसे लेता है श्वास? कौन बताएगा? ये कुछ चीजें आपको बता रहा हूं मैं। प्रतिभा, देन कृष्णन जी। प्रतिभा, वुड यू लाइक टू से हाउ फ्रॉग कैन टेक ब्रेथ? आपने ध्यान नहीं दिया कभी, मेरे ख्याल से नॉस्ट्रल से। बताऊंगा अभी। यस ओके, कोई बात नहीं, यू ट्राइड वेरी गुड। कृष्णन जी, देन रिंकू जी। यस, ब्लेसिंग। कृष्णन जी, अनम्यूट योरसेल्फ। तो आप कर लो, हाँ अनम्यूट करें। वी आर नॉट गेटिंग योर वॉइस। कृष्णन जी, you unmute yourself. Yes. Can you hear me, Guruji? Yes, we can. Yeah. Through the pores of its skin, Guruji. Very good, very good. Is only with the help of skin? That's what I know. Yes, okay. Very good. Rinku ji? जी नमस्ते गुरुजी। my daughter had a chapter in her science subject. Wow. So frogs breathe through their skin, Guruji. To what? Through their skin. Skin. Very good. Now anybody want to edit something? A frog, listen properly. A frog can take breath 3 times. When he is walking on the ground, he uses his small lungs. Right? When he is in the water, that time he uses his gills, small. When he is down the earth, means underground, he uses his screen to take the breath. Everybody right? But एक मेंढक ऐसी प्रजाति है जो समय समय पर अलग अलग अंगों से अलग अलग अंगों से श्वास लेती है। वो जब जमीन के अंदर रहता है, मेंढक जमीन के अंदर रहता है, तब वो त्वचा से श्वास लेता है, टेक द ब्रेथ बाय द स्किन। When he is walking on the ground, he uses his lungs, and when he is swimming, he uses the gills. छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। अगर कोई साइंस का बच्चा होगा तो आप बताना, गूगल करके देखो, आप तो पता लगेगा। और फिश ऑब्वियसली गिल्स से लेता है। और कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे जंतु होते हैं
उनको कोई लंग्स नहीं होता, उनका जो ट्रेकिया होता है वो उसी से श्वास लेते हैं। बट एज ए मेमल्स हम, और जो भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी मींस हाउ आई कैन प्रिवेंट, दोज हैव द chest area. So they are all animal, those are the chest, they are carrying the lungs inside the body. And we take the breath by the lungs. But in the pranayama field, in the Ashtanga yoga you talk, our breath, अच्छा one question more. हम जो बाहर की हवा इनहेल करते हैं उसमें कितनी परसेंटेज ऑक्सीजन रहती है और कितनी परसेंटेज दूसरी गैसें रहती है? एनीबॉडी कैन हेल्प मी? बात 70% ऑक्सीजन। वेरी गुड। चलो और कौन, एनीबॉडी हेल्प? दूसरा कृष्णन जी। I thought I would say 80% oxygen, Guruji. एनीबॉडी एल्स? रिंकू जी। गुरुजी जी, 68%। हाँ 18%, 18%. I think ऑक्सीजन। that is less. I don't. जी. You are, I think you are doing the Google. चल रहे हो। You can't believe it. When we inhale the breath, 71% nitrogen we inhale, only 27% we inhale oxygen. A rest of the percentage carbon dioxide. You Google it. And when we exhale the breath, that time 72% nitrogen we exhale, only 4% oxygen we consume. We exhale more than 4% carbon dioxide and inhale more than 4% oxygen. 23% oxygen we exhale. You can just Google it and you can just see the video. How much air, what do you think, whole air is constant of air, oxygen, sorry. So means that we are all over we are taking only 4% oxygen from that. And lungs, how much percentage normal person is using, those are not attached with the pranayama. Hardly 25 to 30%. Now, in the breathing workshop, what is our intention and motive? We increase our lungs capacity. Why? Because we can inhale more oxygen. Matlab not 4 to 40%. Maybe 4.1, 4.2, 4.3, maybe we can exhale more. Maybe possible if I talk outer cities, those are Americans and all, they must 10 particle less, the oxygen is more. So finally, I explain about the breathing system, a small portion. Now, your breath is connected with your life. You came on this planet, आप इस धरती पर आए हैं गिनी हुई सांसें लेकर. फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए लेकर प्रतिभा आई है, 1 लाख रुपए लेकर बसु आया, 1 लाख रुपए लेकर भारती आई है, कोई भगवान ने कोई एक्शन नहीं करी. अब जैसे जैसे आप श्वास कर, और इवन एनिमल्स में भी नहीं करा, बट पैटर्न ऑफ योर ब्रेथ, श्वास लेने का तरीका आपका जीवन निर्धारित करता है. वही श्वास का कोटा एक कुत्ता 12 साल में पूरा कर लेता है. Even dog complete whole breath in 12 years. Why?
because in a 1 minute he take 30 to 40 breath. And when you talk about tortoise release one breath in a 2, 3, 4 minutes. Even sometime he take half a minute. तो आपकी श्वास आपके मन से जुड़ी है, आपकी श्वास आपकी आयु से जुड़ी हुई है, आपकी श्वास आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, जिस पर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, कैसे हाइजेनिक फूड खाया जाए, कैसे एक्सरसाइज की जाए, कैसे कम कैलोरी की जाए, कैसे अच्छे वातावरण में सोया जाए, हाउ यू गेट ए गुड स्लीप. हाउ मेनी पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्रेथ, हाउ यू टेक द ब्रेथ. हमें श्वास लेना सिखाया ही नहीं, क्योंकि हमें जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि आराम से आना जाना श्वास का चलता रहता है. अभी नो नीडेड. बट लेकिन इस ब्रेथिंग वर्कशॉप में मैं आपका श्वास से इस प्रकार परिचय कराऊंगा कि ये आपका एक शौक बन जाएगा, एक पैशन बन जाएगा. पहली बात, कल की तारीख में आप लोग एक पल्सोमीटर आता है ब्रेथ का, है ना. फ्रॉम टुडे यू कैन ऑर्डर इट्स ओनली 200 to 300 एंड आई थिंक वहां पर भी $1-2 का आता होगा, जिसके अंदर 3 बॉल रहती है. जो हॉस्पिटल्स में रहता है उसको बोलते हैं पल्स मीटर या कुछ पल्पोमीटर, ऐसा कुछ बोलते हैं. वो एक पाइप रहता है, वो पाइप से आप फूंक मारते हैं तो बॉल वो ऊपर आती है, और आप खींचते हैं तो बॉल नीचे आती है. कल वो परचेस करना मामूली कीमत का मिलता है. द हॉस्पिटल में आपके पास है अंजू जी? किस किस के पास है? तो वह कल अपने पास रखना. यस, आपके पास भी है ना अंजू? अभी जिनके पास नहीं है, अगर आपके हाल फिलहाल में आपके पास हो तो उसको जरा दिखवा दे मुझे स्क्रीन पे. आप है? हाँ, यस, अंजू जी ने दिखा देगी. इट्स वेरी सिंपल बट इट इज अ वेरी मिरेकलस. मैं बोल रहा कहीं ना कहीं एक विज्ञान का और अध्यात्म का संगम है प्राणायाम का. ये बता रही है अंजू. मेरा मान के आप हाँ हाँ, तेरे पास है. अभी हम उसको देख लेना, अब फिर बात करते हैं. ओ माय गॉड. जी गुरुजी, is it oximeter? ऑक्सीमीटर. Oximeter. Is it oximeter, Guruji, which we purchased during COVID days? हाँ, कोविड डे सामने किया था. ये तो बता देगी, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका. वो एक 3 खाने होते हैं, उसमें बॉल रहती है, ये वो दिखाएगी अंजू. अंजू अरे No, Guruji. Maybe we had to clip it on the finger. That No, one, that Guruji, is not the oximeter. blowing That is one. not oximeter. That is not required. That is not required. Yeah. Okay, that is different. Okay, Guruji. Yeah. चलो that अच्छा, अरेंद्र अंजू बेटा, अपन कल ले लेना, कल बता देना किसी को भी लाके ना. तो एक छोटा सा प्लास्टिक का एक पाइप लगा होता है उसमें आप ऐसा रहता है कि आप फूंक मारो तो वो अलग अलग कलर की बॉल ये आया, ये लिया, देखो. ओह माय गॉड, ये जस्ट सी, यू मस्ट बी सीन इट. देखो अंजू जी बताइए, एक छोटा थोड़ा इसको क्लोज करिए. ये देखिए, ये देखिए आप, एक छोटा सा 200-300 रुपीज का आता है ये, है ना. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू अंजू जी, थैंक यू वेरी मच. तो कल से आप ये मंगा के रखें और यू जस्ट चेक योर ब्रेथ. अब कोई भी एज हो कि आप कितनी देर कर सकते हैं और बॉल को कितना ले सकते हैं ऊपर, पूरा नहीं जाएगा. तो कल अपने लंग्स की कैपेसिटी निकाल के रखना कि मेरी फुटबॉल कितनी बार गई, और उस पर इंस्ट्रक्शन लगे रहते हैं. जब भी समय मिले घर में 2-2 मिनट 3-3 मिनट वो करते रहो. इट इंक्रीज योर लंग कैपेसिटी. और उसके बाद प्राणायाम के माध्यम से तो हम बैठेंगे, ठीक है.
वाह रंजू जी, थैंक यू वेरी मच। आपको उठ के जाना पड़ा, इतनी तकलीफ दी अपने, थैंक यू वेरी मच। एंड लेट्स सुजाई, आप सीट पर पहुंचे। वह तो जो आप बता रही हैं रिंकू जी, वो उंगली पर लगाने के लिए बॉडी कितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रही है, मोस्टली 95 के ऊपर ही होना चाहिए। जब कोविड टाइम था लोगों का 89 चले गया, 88 चले गया। एंड व्हेनेवर वी गो यूज्ड टू गो इन कैलाश मानसरोवर, नोबडी इज देयर हु कैन डू, तो वहां पर भी कैलाश मानसरोवर भी चेक करते हैं वो कि वो ऑक्सीजन कितना लेवल है, तभी आपको आगे कंटिन्यू यात्रा पे कराते हैं। तो ऑक्सीजन लेवल जो कि मात्र 4% हम वहां से ले रहे हैं। अब हम चाहेंगे पहली चीज कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़े और हमारा श्वास लेने का तरीका अच्छा हो। और जब जब एक बात और अच्छी बताता हूं आपको, अगर समझो, आपको मालूम है हिचकी क्यों चलती है? हाउ मेनी नो? कभी कभी खाना खाते खाते हिचकी चलने लगती ना, डू यू नो इट व्हाई? हम लोग कह देते हैं याद कर रहा है कोई। इट इज सिंपल सिस्टम ऑफ द गॉड on the throat area. There is a one siphon. Okay, when brain give indication that breath is coming, that close the food door and start passing the breath. The same trachea, and when brain give indication to that food is coming, immediately close and food is coming to start in the food nail. Do you know it? Sometime whenever we are taking the food, but our mind is engaged somewhere else, so mind become confused. He is taking food or he is taking breath. So that time, whenever you just think normal thing, whenever you are taking the food and thinking something else, इसके आना चालू होगा। तो आप जिसको भी याद कर रहे होगे वो बोलते कोई याद करा, उससे अटैच कर दिया। और अगर आप खाना खाते वक्त पूरा ध्यान खाने पे रखेंगे, मेरा पूरा विश्वास है कभी हिचकी नहीं चलेगी। आप कभी कभी हो जाता है ना, ऐसा होता है ना, यस नो, ये ओनली, ये सब केवल इस आपकी नॉन अवेयरनेस के है, क्यों? बिकॉज हमारी बॉडी को हम भूल जाते हैं कि हम खाना खा रहे हैं और हमारा दिमाग कहीं और रहता है, और भगवान भी कई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऐसा आ जाता है कि फूड नली जाती है, वो फूड नली, वो आपका फूड वो श्वास में जाके वो श्वास नली बाहर फेंकती है, तो वो आपको हिचकी आती है। क्लियर? ये तो हमें विज्ञान के बारे में समझा। अब हम हमारे श्वास के बारे में बात करते हैं। यह मान के चले, ये कई बार बोल चुका हूं, हमारी 90% टॉक्सिन्स श्वास के माध्यम से बाहर होती है ना, ये हमको मालूम है। लेकिन हम अधिक से अधिक गंदगी श्वास से बाहर कैसे फेंके, तब हम अगर बाय चांस हमारे लंग्स का प्रॉपर यूज कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे, है ना। सामान्यतः आप लोग मुझसे जुड़े हुए, यू आर कनेक्टेड विथ मी, यू आर डूइंग द भस्म योगा, यू आर डूइंग द पितृ प्राणायाम, ऑलरेडी यू आर इन द प्राणायाम मोड। But today, from today onward, from tomorrow onward, we take a little bit turn. You know, there is a one day left lungs and right lungs. One lung is smaller and one lung is bigger. That explain tomorrow session. अभी हम सेशन में बात ये करें, हमारा आपका नॉलेज सेशन हमने आपको आधे घंटे का दे दिया। आधे घंटे 15 मिनट हम प्राणायाम करेंगे और 15 मिनट का ध्यान करेंगे। 15 days we will focus on the breath. Pranayam means just only aware your breath, nothing. Now today I will try to explain you how many type of breath you take it. आप कितने प्रकार की श्वास लेते हैं, कौन बताएगा? How many type you take the breath? देखिए, एक फास्ट वो तो लेते हैं जब गुस्से में आते हैं तो तेज हो जाते हैं, अगर कहीं वॉक करके आते हैं तो फास्ट हो जाती है ब्रेथ, अगर आप कहीं सीढ़ी चढ़ के आते हैं आपने लगते हैं, ये फास्ट ब्रीथिंग हो गया। वो ले नहीं रहे आपका, वो हार्ट पंपिंग करके ऑक्सीजन ज्यादा डिमांड कर रहा है
और आप जान करके ऑक्सीजन ले रहे हो, it's only matter of demand and supply. When your body is the fasting mode, you walking, one time you feel, so you start taking the breath. Even mouth also you start, because you need the both, you need the nostrils and mouth both. So it is connected with your heartbeat. When your breath normal, you check it yourself. कभी बात करके देखना कि आप खूब तेज चलना और आंखें बंद करके बैठ जाना, तो आपकी श्वास भी तेज चल रही है, आपका हार्ट बीट भी तेज चल रहा है. जैसे जैसे आपका श्वास नॉर्मल होगा, आपका हार्ट बीट भी नॉर्मल होगा. ठीक है? Whenever your breath is become faster, your heartbeat already faster. और जब आपको ऐसा लगेगा कि श्वास बहुत धीरे आ रही है, आपकी हार्ट बीट भी धीरे आ रही है और श्वास एकदम नॉर्मल चल रही है, इट मींस योर माइंड, इट इज ऑलरेडी कनेक्टेड विथ योर माइंड. तो आज हम थोड़ा नॉलेज सेशन हमने ले लिया इंट्रोडक्शन में, कल से थोड़ा नॉलेज सेशन अलग लेंगे और अभी हम 15 मिनट थोड़ी ब्रेथिंग करते हैं, और वह जो ऑलरेडी आप कर रहे हो. टाइप ऑफ ब्रेथ, एक तो मैं आपको पहली चीज बताता हूं, ब्रेथ वन लंग ब्रेथ, वन लंग ब्रेथ. ठीक है? ये पॉसिबल जब होगा when you use one nostril and one lung. When we do our Pitta Pranayama, you check Pitta Pranayama, what you do? We exhale forcefully. Why everybody do the Kapal Bhati? Because Kapal Bhati Pranayama mein we exhale fast, inhale slow. It means we inhaling oxygen and exhaling more carbon dioxide. Whatever percentage we are inhaling oxygen, 3 or 4 or 2% oxygen, the same ratio will convert in a carbon dioxide. आपको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है? एनीबडी प्लीज, बोर तो नहीं हो रहा है? देखिए, आपके शरीर से जुड़ी बातें कर रहा हूं मैं आपको. तो आप जितनी श्वास तेजी से लेंगे, अब आप बताओ वॉक करने का क्यों बोलते हैं, जॉगिंग करने का क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी श्वास तेज चलती है, श्वास तेज चलेगी तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलेगी, शरीर की गंदगी, तो आप और फ्रेश महसूस करेंगे. अब ज्यादा श्वास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा. अब गुस्सा तो कभी, तो भागते हो आप, तो सीढ़ी चढ़ते हो आप 8 मंजिल, अरे ठे यार भी, आपका शरीर थक रहा है, हार्ट बीट 5 मिनट. When breath normal, you again start cleansing. तो जितना शरीर को कष्ट दोगे, उतनी शरीर की गंदगी बाहर आएगी. और आपका जो डेली रूटीन कर रहा है वो करें. मैं तो आपको आपके शरीर से, क्योंकि इस एज में मैं आपको कहूँ वॉक करो, ये करो, जाओ, कर रहे हो आप डेली रूटीन में, आपके डेली रूटीन में कोई एड नहीं करना चाहता, पर लेकिन मैं आपकी ब्रीथ टेक्निक जरूर एड करना चाहूंगा इस ब्रीथिंग वर्कशॉप में, है ना. तो अभी सामान्यतः हम 3 प्रकार से श्वास लेते हैं. एक प्रकार से श्वास कौन, जो सामान्य चलती रहती है, जिस प्रकार श्वास के बारे में हम अवेयर नहीं रहते, सामान्य जो चल रही है. जब गुरुजी बोलते हैं लंबी गहरी श्वास लो, तो वी टेक द ब्रेथ अलोंग विद द अवेयरनेस. गुरुजी से take a long deep breath, you are totally with the breath, and exhale by your mouth slowly, slowly. Why I say slowly, slowly? Because your lungs pump one time and slowly, 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 slowly you are releasing the breath. So pumping system is become good. That's why I say you have control. I say normal breath, hold. You cannot hold more than 4-5 seconds. After 5 seconds, 10 seconds, you start giving trouble to your body. No, we don't want to give any trouble to our body.
एक किराए का मकान है, जिस प्रकार अपने मकान मालिक ने अपनों को मकान दिया है, वैसा ही मकान अपन छोड़ के जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, अगर आपके खान पान से, अगर आपके डेली रूटीन से, अगर शरीर के व्यायाम नहीं करने से, अगर आपके शरीर में कोई विकार आता है, तो उसी प्रकार करना कि आपका मकान के जैसे जया गई अपने मकान को देखने, किराए से जो दिया कितना खराब करके गए। तो जो जया हो या भारती हो, कोई भी हो, जो कष्ट निकलेगी ना वो जस्ट सी। तो हमारा शरीर जैसा दिया ऊपर वाले ने, प्रयास करो वैसा का वैसे ही शरीर छोड़कर जाए। एज तो जैसे होगी वो बात अलग है, कोशिश करो, वो बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा, जो ग्रहों की इच्छा है ना। तो एक ब्रेथ तो हमारी नॉन अवेयर, बात करो भारती कैसी है बेटा, क्या चल रहा है, रिंकू अच्छा लंग से रहते, दैट टाइम यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर ब्रेथ। जया गाना गा रही है, जया चेंटिंग कर रही है, कृष्ण जी चेंटिंग कर रहे हैं, दैट टाइम इज नॉट अवेयर अबाउट द ब्रेथ। When Amit is giving any question का आंसर दे रहा, पूरा माइंड एंगेज है, she is not aware about the breath. breath चल रही है ना, चल रही है नहीं। इसे मोस्ट ऑफ द टाइम आप 23 आवर्स नाइट में नॉन अवेयर मोड में ब्रेथ लेते हो। बस मुझको आप आधा घंटा दे दो, 15 मिनट्स, इवन वॉक कर रहे हो, कौन श्वास की तरफ रहता है, बस अवेयरनेस के साथ श्वास लेना, वन पार्ट ऑफ द प्राणायाम। मे बी पॉसिबल प्राणायाम इज एक्सप्लेन द different way, but along with the awareness, if you take the breath, along with the awareness you move your body, is called pranayam. Pranayam means how you uplift your energy, pran energy. Okay, so one breath is non-aware breath, another is breath with awareness. So now today we take how much old you are, everybody. Till then we have to take the breath only. You just join your thumb and then you keep it. And as maximum, how much you can use your lungs. You just take the breath and hold for a few seconds. Just check your lungs are okay. जैसे हम रुकते हैं ना, कुछ पलों के लिए रुको and exhale the breath slowly. आज पहली बात, you breathing along with the awareness. आज श्वास सजगता के साथ, तो सिर्फ हमको आंखें बंद करना है, लंबी गहरी श्वास भरना है, थोड़ा होल्ड करना है और श्वास को छोड़ना है। तो टुडे फर्स्ट लेसन, ब्रेथ along with the awareness. ठीक है, हाउ ओल्ड यू आर, जो भी एज है उतनी ब्रेथ आपको लेना है और छोड़ना है और इंजॉय करना है। माय गॉड, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, वैसे अंदर वाली श्वास को लेना है और श्वास छोड़ना है। जब आपकी श्वास की एज पूरी हो जाए, उस वक्त ऑटोमेटिकली यू विल बिकम इन अ मेडिटेटिव मोड। आप स्वतः एक मेडिटेटिव मोड में चले जाएंगे। क्लियर? ओके, समझ गए? अब अपनी अपनी एज छुपाने की कोशिश में कम मत लेना हो, जो एक्चुअल एज है वही लेना। You somebody tell, oh Guruji, I'm only 35. 45 age, you take the actual breath. Okay? Just want to change the atmosphere. And when you take the breath along with a smile, my God, your breath is smile. Na? It's real. Your body, every part will take the smile. हर नहीं तो मेरी एज तक जैसे श्वास आप ले रहा हूं, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग। Oh, Guruji said up to age. Oh, I am 45 age. Now 1, 2. Don't become too much serious. Just along with a smile. 1, hold 2. Maybe possible mind won't go somewhere, but you again focus. I have to take the breath along with the awareness. I have to exhale, little bit hold and exhale the breath along with the awareness up to my age. 2-5 साल ऊपर नीचे भी होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, बट स्माइल के साथ। ओके, यस, करेंगे सब।
और उसके बाद भी immediately convert in our meditative mode, and you just try to know one strong point of the breath. When you inhale the breath, जब आप लंबी श्वास लेंगे, you feel your body is become charged, and when you exhale the breath, you will feel, oh my God, you got to relax. So charging, relax, feel that experience, breath along with the awareness up to your age. Okay, first both hand together. Do the Shikharasana. Feel some force is pulling you up. Keep the head down. दोनों हाथों को पुनः अपने ध्यान पर ले आए. Now join your both finger, thumb and spine straight. Become aware of your nostrils. Now start taking the breath, hold, exhale as maximum you can, deep breath and exhale. Up to your age, along with the spine. If body tired, relax. Take unaware breath. Take aware breath up to your age.
then allow your breath automatically. एक साक्षी भाव से अपनी श्वास को देखें। Relax the body. श्वासों को अपने आप चलने दें। Allow breath automatically. Relax and watch your breath. Chant 3 times Om. Start. 3 बार ओम का ओंकार करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास भरें ओम चैंटिंग के लिए। ओम।
श्वासों की माला में अपना अपना नाम याद करें। श्वासों की माला में सिमरू तेरा नाम। श्वासों की माला में सिमरू में तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। श्वासों की माला में सिमरू में तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। तेरे मन की तू जाने और मेरे मन की शाम। सांसों की माला में सिमरू में तेरा नाम। गुरुवर तेरी कृपा निराली। श्वास आपका गुरु। गुरुवर तेरी कृपा निराली बरसे है दिन रात। धन्य हुआ जीवन जब मेरा पाया जब तेरा साथ। कृपा तेरी हरदम रखना करता ये अरदास। श्वासों की माला में सिमरू में तेरा नाम। So become aware of your surroundings and body. पितृगणाय विद्महे जगत्तारिणी धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्।
अपने शरीर और श्वास के प्रति सजग होते हुए जब भी आपका मन चाहे अपनी आंखें खोल सकते हैं। Whenever you feel complete, you can open your eyes along with a smile. Take a glass of water. Cover by right hand. Very good. Very good. And drink water. Just with the eyes, just see all other people on the window. Just bless them. भारती जी, अमित जी, जो भी आपको दिख रहा है, सबको ब्लेसिंग दें। It is your unconditional blessings. कृष्ण जी, रिंकू जी, अमित जी, एल, सब जनों को आप एक ईश्वर बनकर इन सबको आशीर्वाद दें। ये जो भी परेशानी से जूझ रही हैं, जो भी तकलीफ से जूझ रही हैं, उसके लिए इनको ब्लेस करें। और आप ब्लेसिंग में कंजूसाई मत करें। देखिए, आप अकेले ब्लेसिंग दे रहे हैं, लेकिन आपको ब्लेसिंग देने वाले कितने लोग हैं? जस्ट कंपेयर। ओनली भारती गिविंग द ब्लेसिंग, but from how many people Bharti receiving the blessing? That is a power of unconditional love. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। मिलते हैं कल की ब्रेथ वर्कशॉप पे एक अलग टेक्निक के साथ। आज जो हमने बताया ये मे भी पॉसिबल कल जब भी समय मिले आप जरूर करके देखिएगा और कुछ ध्यान करेंगे। And number one, the breathing workshop, if you like it, you put up some comments in the group. It may be possible due to your comments, the other people are able to join. May be possible those are in ignore mode. May be possible all are not in urgency work. May be possible some is forgotten. So they are forced to come in the session. Take care of yourself. Take care of your